I'm waiting for the answer. What is audiometry? Ma'am, by audiometry we detect the range by which we can hear sounds of different intensity and frequency. Okay. Okay. So basically, our class is today on two major investigations that we do as an ENT surgeon and physician, right? So one is audiometry, pure tone audiometry, shortly known as PTA, and the other is impedance audiometry. Okay, so it's very important. First of all, I mean, before getting into the kind of tests these are and like whatever we have to do for all these things, we firstly need to understand that the factors that we are using in all these tests, right? So firstly, tell me what is a air conduction and what is a bone conduction? Someone please. It's a class of I mean maximum half an hour. ठीक है अगर आप रिस्पॉन्स कीजिएगा टाइमली तो एक्चुअली हाफ एन आवर 45 मिनट में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा एंड यू विल टेक होम अ ग्रेट like you will understand the entire thing and you will go back very satisfied with the class okay because these things will keep coming and you will have a lot of queries into this because जब class सुनोगे तो you'll find everything very easy but when you start looking into the PTAs and the the audiograms and everything else तब आपके doubt actually generate होते हैं so it's a very short class but जल्दी से आके जवाब दोगे तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक है ना so tell me the what is the what is air conduction and what is bone conduction what do you understand by that Ma'am, air conduction is basically through the normal pathway which we study. And then, ma'am, bone conduction is conduction through temporal bone and mainly its petrous part. And, ma'am, air conduction is more better than bone conduction. ठीक है गुड तो बेसिकली यही है मोटा मोटी आइडिया व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके देयर आर टू पाथवेज जिसके थ्रू साउंड ट्रांसमिट होता है ठीक है एंड ऑब्वियसली देयर इज अ स्टैंडर्ड पाथवे वेयर वी व्हाट वी स्टडीड द अदर डे राइट that there is an external auditory canal the sound goes from that to tympanic membrane vibrates then gets transmitted from the ossicles and then hits into the inner ear. Okay. Now hitting into the ear, inner ear, the sounds can get transmitted on the other side also, which is जो सही बताया इन्होंने कि जो आपका पूरा टेम्पोरल बोन है, जो फीटस पार्ट है, जहाँ पे बेसिकली इनर ईयर का जो पोर्शन है, is present. Okay. So all the sounds, ठीक है, they are also vibrated and transmitted through the bones of the cranial bones that we have, and those are perceived by the inner ear as well. Okay, so basically two pathways, but the preferred pathway is air conduction, and obviously since the air conduction path, जैसे हमने जो पढ़ा कि it has got a lot of acoustic mechanism involved, so definitely air conduction is better than the bone conduction. Bone conduction is just like a additive and accessory pathway to all of this. ठीक है तो now जब हम evaluation करते हैं so it is very important for all of us to understand कि air conduction के पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भी हमें हियरिंग लॉस मैनिफेस्टेशन दिखेगा अगर बोन कंडक्शन में कोई दिक्कत होगी तो हियरिंग लॉस मैनिफेस्टेशन होगा अब आप लोग कहोगे कि मैम ठीक है दोनों में हियरिंग लॉस हो रहा है तो हमें दोनों को इंडिविजुअली समझने की क्या ज़रूरत है ठीक है एनीवेज वन ऑफ द पाथवे इज नॉट अ प्रेफर्ड पाथवे इट इज जस्ट अ नेसेसरी पाथवे वो कहीं ना कहीं जाके क्यूमुलेट ही कर रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस but eventually with time we realized as we learned that day also that there are two parts, right? One is the conductive part, the conductive mechanism in the part of hearing, and then the other part is the which involves the nerves, right? Which involves the cochlear nerve और फिर वहाँ से पूरा आपका जो ब्रेन स्टेम पाथवे होता है. So प्रॉब्लम किसी भी जगह पर हो सकती है. So when hearing loss was classified, it became easier for us to understand that okay, there can be something like as conductive hearing loss, and there can be something like as a sensory neural hearing loss. Okay, why? Because the treatment entirely changes because the causes changes in both of it. Okay,
So hence there was segregation of the conductive mechanisms, one as the air conduction and one as the bone conduction, because when both of these are evaluated simultaneously, it gets easier for us to categorize them as either CDHL, which is a conductive neural loss, or SNHL, which is a sensory neural hearing loss. Okay? ये बात बताना ज़रूरी है बिकॉज कल को जब आपकी एक ट्यूनिंग फोक टेस्ट की भी क्लास होगी वहाँ पे भी सेम होगी, वहाँ पे भी हम इंडिविजुअली एयर कंडक्शन को मेजर करते हैं या इवेलुएट करते हैं और साथ ही साथ हम बोन कंडक्शन को भी इंडिविजुअली इवेलुएट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ evaluating these two parameters individually. Okay, so first thing is this. Now second thing is, because this will keep coming जब भी हम audiograms की बात करेंगे या tympanograms की बात करेंगे, there will be few terms which will keep coming onto your way, right? So can you tell me what does intensity means? Or let me change my question. Tell me what does frequency means? Number of waves You know, passing through a point per unit time. frequency. अच्छा, number of waves passing through a point in a definite time. अच्छा, ओके, सो इसका कोई और डेफिनेशन दे सकते हो? यू आर राइट इन अ वे, बट व्हाट इज इट? इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स. अगर हम पर्टिकुलर टाइम को अगर हम डिफाइन कर देते हैं पर सेकेंड, जो स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसको हम हर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिफाइन करते हैं, सो इट्स द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन पर सेकेंड. ओके, ठीक है, सो दैट इज साइकिल दैट वी आर फॉलोइंग. ओके, एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? Measure of loudness. Measure of, sorry. Loudness. Okay, so what is loudness? Ma'am, loudness is measured in decibels. Or intensity? Intensity means one थी energy मतलब joule per unit time upon में meter square. एकदम पता चल रहा है कि एकदम फ्रेशली बेक्ड बच्चे आए हैं नीट दे करके, जहाँ पे इनको सब कुछ याद है अभी भी अपने यू नो अपना सारा फिजिक्स तो सब कुछ याद है. इट्स वेरी गुड दैट यू रिमेंबर इट. सो लेट्स जस्ट अप्लाई इनटू आवर टर्म्स. ओके, सो बेसिकली अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है ये दो तीन टर्म्स, ये चार टर्म्स समझना है. सो देयर आर फोर टर्म्स. पहली बात तो आप याद रखें, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड पिच. ये चार टर्म्स हमेशा आएंगे आपके सामने में और ये चार टर्म्स से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, तो पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी which is which is in terms of जो हम scientific terms की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो how do we remember it? Intensity is the volume. Okay, frequency is the, जैसे एक हम रेडियो एफएम सुनते हैं ना, तो उसमें जब हम फ्रीक्वेंसी, जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है. ठीक है, जब हम उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो चैनल चेंज होता है. ठीक है, so these two are not interchangeably used. That you have to remember because many a times you get confused and people start using frequency instead of intensity and they think कि ये दोनों directly proportionate है. ऐसा कुछ भी नहीं है. Frequency is one entity which only defines the channel, you know, like एक frequency set है उसमें वो कितने टाइम की waves produce कर रहे हैं, and intensity on the other hand is the volume. Okay, तो हम अगर इंडिविजुअल नॉब जब हम घुमाते हैं एफएम में, सो ओनली वन दैट पर्टिकुलर एंटिटी गेट चेंज, नॉट द अदर. ठीक है, अब जब हम ये सारी चीज़ों को सब्जेक्टिवली देखते हैं ऑन प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है, जब इट कम्स डाउन टू अस, the intensity is equivalent to loudness. So we define sound as loudness. This is loud, this is not loud, this is soft. Okay, and frequency का जो counterpart वहाँ पे बनता है that is pitch. Okay,
तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हायर द फ्रीक्वेंसी, लोअर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, जब हम ये सारी बातें करते हैं तो पिच इज दैट, ठीक है, कि कितनी डल वॉइस होगी, कितना श्रिल वॉइस होगा, ऑल ऑफ दैट. So these four terms has to be very clear in your head. You need to understand that these cannot be used for the other. Okay? But yes, obviously, those two words that I have said, which are correspondence to each other, intensity and loudness, and frequency and pitch, they come under one shed. Okay? तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये हर्ट्ज से डिफाइन होता है, इंटेंसिटी की बात करते हैं तो डेसिबल से डिफाइन होता है. अब डेसिबल की भी एक अलग स्टोरी है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज स्टोरी विच वी विल नॉट बी टेकिंग इट टुडे. जब आप साउंड मैकेनिज्म और साउंड की बात करेंगे जिस दिन, उस दिन आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि हाउ डज द डेरिवेटिव्स ऑफ डेसिबल कम्स फ्रॉम, ठीक है, व्हाट इज द कैलकुलेशन एंड व्हाट डज इट रियली मीन. ओके, so now if we start with audiometry, something known as audiometry, pure tone audiometry. Okay, so what do you mean by pure tone audiometry? Or if I change my question, what do you mean by pure tone? Audiometry की Pure तो बात हो tone रही. sound which is having a single frequency Sound which is having a single frequency. wave. Okay, exactly. Very good. So there are many things, ठीक है ना. कम्युलेटिव टोन्स होते हैं, प्योर टोन्स होते हैं. तो प्योर टोन का मतलब ही यही है कि अगर हमने एक साउंड देना शुरू किया, एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो वही एक फ्रीक्वेंसी में हम सारे पैरामीटर्स को फिर इवेलुएट करेंगे, ठीक है. So hence this test is also known as pure tone audiometry, because the whole idea here is to let the patient hear one frequency at a given point of time. ठीक है, और हर फ्रीक्वेंसी को वन बाय वन इवेलुएट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देयर साउंड इंटेंसिटीज, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द साउंड. ठीक है, एंड देन वी सी दैट एक पेशेंट एक फ्रीक्वेंसी को कितने साउंड में सुन सकता है. ठीक है, एंड ये जब हम रिपीटेटिवली करते हैं हर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एक ग्राफ बन के निकल के आता है, जिससे फिर हम एक इम्पेडेंस निकालते हैं कि दिस पेशेंट माइट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ हियरिंग लॉस. I hope you get it. Yes, ma'am. Okay, good enough. So when we have understood this, ठीक है, so now we need to understand कि what is the setup of it. पहले तो setup है क्या, फिर हम इसको कैसे करते हैं, और फिर हम इसके इम्पेडेंस क्या होते हैं, ये चीज़ें फिर हमें देखनी है. So as you see here, ठीक है, I think you guys can see the PPT, right? Yes, ma'am. PPT is visible. Yeah, very good. So you do you see this machine which is set up here? अब इसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. दिस इज वन काइंड ऑफ पीटीए मशीन, बट ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है. कन्वेंशनली देखोगे तो थोड़ा और बड़ा होता है ये मशीन, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है, वी हैव अ इवन मोर कंसाइज मशीन. बट व्हाट यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड इज कि पहले तो ये जो दिस बॉक्स दैट यू सी, दिस इज द कंट्रोलर बॉक्स. ओके, कंट्रोलर बॉक्स बोले तो यहाँ पे वी हैव गॉट various tabs and buttons for frequency, for intensities. ठीक है ना, हम ये सब कुछ यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, हम यहाँ से डिजायरेबल इंटेंसिटी, डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज अ ईयरफोन. ओके, so we have got two earphones in a pure tone audiometry setup. Okay, बेसिकली हेडफोन नहीं होता है, वो थोड़ा सा, मतलब एक को हम ईयरफोन बोलते हैं और एक को हम ऑक्सीलेटर बोलते हैं, विच आई थिंक यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल. सो दिस इज द ऑक्सीलेटर एंड दिस इज द हेडफोन. सो व्हेन वी हैव टू डू एन एयर कंडक्शन इवैल्यूएशन, वी यूज दिस. ठीक है, तो लॉजिकली आप समझो, ये हेडफोन जब लगेगा तो ये कहाँ लगेगा आपके, जो हम नॉर्मल हेडफोन्स लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं. पिन्ना के ऊपर मतलब बिल्कुल. एयर तो अगर कंडक्शन के पिना लिए. के ऊपर, बिल्कुल, जब हम पिना के ऊपर ही डाल रहे हैं तो आपको पता है कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू हिट ऑन, विच कंडक्शन पाथवे, इट्स द एयर कंडक्शन पाथवे. ठीक है, इफ यू सी द बोन ऑक्सीलेटर, आपको रियलाइज होगा, इसमें तो बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट यू कैन स्टिल सी समथिंग लाइक एज अ ब्लैक नॉब. So that is like a cushion knob which is placed on
the mastoid bone. Okay, so clearly when we are putting it on the mastoid bone and we are providing the sounds through that, it means we are evaluating the bone conduction. ठीक है? There is something called as a response switch here, if you can see. So अब यार ये important होता है because whenever we do a pure tone audiometry or whenever you will do a tuning fork test in ENT, it is very important जब भी आपको method of examination पूछा जाएगा एग्जाम में भी आगे, ठीक है ना? तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट कि बाकी किसी भी सब्जेक्ट पे जब हम जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि वी टेक अ कंसेंट, राइट? वी टेक अ कंसेंट बाय टेलिंग देम दी method and nature of the examination to the patient. ठीक है? And we observe for the reaction of the patient onto it. Okay? But in ENT, there are few your examination जहाँ पे हमें patient का response हम देखते नहीं हैं, हम उनसे पूछते हैं. ठीक है? So this becomes a behavioral test. ठीक है? It also becomes a अभी subjective है या objective है? सब्जेक्टिव सेमी सब्जेक्टिव या सेमी ऑब्जेक्टिव. वैसे तो जब ट्यूनिंग फोक टेस्ट करते तो सब कुछ ही सब्जेक्टिव हो जाता है वहाँ पर. ठीक है? यहाँ पे ये है कि हमारे जो साउंड का जो हमने जो सोर्स क्रिएट किया है वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है. ठीक है? तो इसीलिए ये सारे टेस्ट सेमी क्वालिटेटिव कहलाते हैं या सेमी क्वांटिटेटिव कहलाते हैं. ठीक है? सो यहाँ पे अब क्या होता है, these tests need the response of the patient. They tell us कि उनको सुनाई दिया या नहीं दिया. तो ये जो रिस्पॉन्स स्विच होता है इट इज़ फॉर दैट रीजन. अब यार इसमें तो रिस्पॉन्स स्विच आ गया, हम वो पेशेंट को पकड़वा देते हैं और हम उनको बस बताते हैं कि आपको जैसे ही आवाज़ सुनाई देगा आप हमें इसमें ये वाले रिस्पॉन्स स्विच पे प्रेस कर दीजिएगा. ठीक है? But in a very conventional setup, if you go, so sometimes patient doesn't even have this response switch, the machine doesn't have it. So we just ask the patient to verbally tell whether the patient has heard it or not, or we just ask them to raise their index finger whenever they get to hear a voice. Okay? So this is like the basic setup of this. अगर अब हम देखें, now this is the examination room setup. Okay? So this is how generally it is. It's a soundproof room. ठीक है? ग्लास ग्लास डोर्स एंड ग्लास वॉल्स कहा जाता है, वैसे बनाया जाता है. एंड दैट टू वी डिवाइड द रूम इनटू टू पार्ट्स with one part completely being for the patient and the other part where the examiner sits. And the tech person has everything, the entire setup with them. They can control the sounds and they record the response of the patient as explained. ठीक है? तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है. साउंड प्रूफ होता है. नो वन इज अलाउड वाइल नो वन इज अलाउड टू एंटर द रूम वाइल द एग्जामिनेशन इज बीइंग डन, द प्रोसीड्योर इज बीइंग डन, द पेशेंट इज ऑफ एंड वाइल एक्सप्लेन्ड द procedure and is being told to give the response. Okay? ठीक है? Now we come down to the fact that how do we do the exam? How do we perform the procedure? Okay? So अब जो हमने इस बॉक्स की बात करी थी जिसमें हमने बोला कि हम इंटेंसिटीज और फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. सो ये जो पूरा मशीन है वो कैलिब्रेटेड है फॉर द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 125 हर्ट्ज टू 8000 हर्ट्ज. Now why do we have something like very specific from 125 to 8000 hertz? Is there any reason? मैम इस रेंज में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है. Okay. So what is the hearing range of human बच्चे? 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज. हाँ, तो हमने 20 to 20,000 हर्ट्ज क्यों नहीं बनाया? ह्यूमन रेंज तो हम वो बोल रहे हैं. मैम सेंसिटिविटी ज्यादा इस वाली रेंज में होती है ना, ये 1000 to 8000 हर्ट्ज वाली रेंज में. सेंसिटिविटी से तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे एनवायरमेंटल जो साउंड्स होती हैं वो भी 3000 to 4000 हर्ट्ज में ज़्यादातर मतलब लिमिटेड होती हैं. तो इसलिए फिजियोलॉजिकली हमारे ईयर सेल्स जो इनर ईयर सेल्स हैं उनकी सेंसिटिविटी टू द फ्रीक्वेंसी तो वो भी इसी रेंज में रहती है ज़्यादातर. ओके.
So basically, मैम अपने नॉर्मल जो सुनते हैं वो इसी रेंज में सुनते हैं, मतलब हमारी जो नॉर्मल बातचीत होती है ना वो इसी रेंज में होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज तो एक्सट्रीम हुआ ना, तो हमारी नॉर्मल बातचीत इतनी एक्सट्रीम्स में जाती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, so exactly. So when we say 500 to 2000 का जो रेंज होता है, ठीक है, that's the basic range that we use in our day-to-day activities. Okay, that's the basic range that we have to deal with all the time. ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है या जो भी नॉर्मल हियरिंग हमारी हो रही है वो इसी रेंज के बीच में हो रही है। ठीक है, सो हमने उस पैरामीटर को ले करके प्लस और माइनस कर दिया, लाइक 500 अगर वहाँ पे है तो हम उसको 250 तक ले गए, और यहाँ पर हमने 4000 8000 ले गए, क्योंकि जो हम फीस थ्रेशोल्ड वगैरह जो होता है वो 2000 या /4000 तक आ जाता है, तो हमने उस हिसाब से ये कैलिब्रेट किया। ठीक है, सो वी हैव जस्ट मेड इट the use of the fact that these are the most used frequencies in and around human possibilities. Okay, got it? यस मैम। तो अब ये, हाँ, तो अब हमारा फंडा क्या है, जब हमने बोला प्योर टोन ऑडियोमेट्री करनी है, हमने पेशेंट को रूम पे ले आए, हमने उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया, हमने उसे सारे अपने उसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, द पेशेंट हैज अंडरस्टूड, वी हैव पुट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट डूइंग द टेस्ट। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि पहले हम एक एयर कंडक्शन चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फिर बोन कंडक्शन चेक कर लेंगे। So we are going to use that headphones that I showed you in the diagram. We are going to make that patient wear that, okay? And there is something called as masking, which is done to the ear, but not in air conduction, okay? It is not needed in air conduction until and unless when we do the procedure and find कि आगे जाके बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, वो चीज़ बात की बात है। पहले what we are going to do is we are just going to put the headphones in the ears, and conventionally it starts with the right ear, या फिर अगर पेशेंट कह रहा है कि राइट और लेफ्ट में उसको, मतलब इफ द पेशेंट प्रेजेंस टू यू कि आई हैव गॉट हियरिंग लॉस इन माय लेफ्ट ईयर, सो पहले बेटर ईयर को हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम डाउन द ईयर को टेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि दोनों ही कानों में उसको हियरिंग लॉस है, तो बाय कन्वेंशनल किसी से भी टेस्ट के लिए आता है, मेनी ऑफ द ऑडियोलॉजिस्ट बिलीव कि राइट ईयर से हम स्टार्ट करते हैं, सो दैट यू नो बाय कन्वेंशन ठीक है राइट ईयर से कर रहे हैं। तो अब हम एयर कंडक्शन टेस्ट करेंगे। अब एयर कंडक्शन में क्या होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम वन टोन, दैट इज वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड वी आस्क द पेशेंट वेदर द पेशेंट हैज हर्ड इट और नॉट। ओके, अब नाउ जब जो रियल सेटअप में होता है, इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम 125 हर्ट्ज, इट जनरली स्टार्ट विद 500 या 1000 हर्ट्ज। ठीक है, पहले हम 500 को टेस्ट करते हैं, फिर हम 1000 को टेस्ट करते हैं, फिर हम 120 और 250 का रेंज टेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट 4000 एंड 8000। ठीक है, दिस विल नॉट बी आस्क्ड टू यू, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वन फ्रीक्वेंसी एट अ टाइम, एंड धीरे धीरे करके हम 5 डेसिबल का अप एंड डाउन करते हैं उस फ्रीक्वेंसी में। वी आर गेटिंग इट? मान लो इफ आई टेस्टिंग 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, so we will keep giving 500 hertz of frequency to that patient, at first at 0 decibel, ठीक है, then we will up it by 5 decibel, then 10 decibel, then 25 decibel, इस तरीके से हम add on करते रहते हैं 5 decibel, ठीक है, and then we get to know कि where the patient is able to hear it. When we get the patient's response at one given decibel, we mark it, we go to the other tone now, like जैसे अगर हमने पहले 500 कर लिया, then we go to 1000, then we do the same sequence in 1000 hertz also. We start giving by 0, then we up it up by 5 decibel, then 5 decibel, then 5 decibel until the patient responds. Okay? So when we are going to mark Yes, this ma'am. on a graph, ठीक है, हमें एक प्रॉपर एक ग्राफ मिल जाएगा, यू नो, हर फ्रीक्वेंसी पे हमें एक एक रीडिंग मिलेगी और हम उस रीडिंग को मार्क करते जाएंगे। ओके, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Okay. डेसिबल्स, हाँ, जब हमने डेसिबल की बात कर ली, मैंने बोला यार 0 डेसिबल में पेशेंट सुनेगा, इज इट पॉसिबल? 0 का मतलब तो 0 होता है। नहीं मैम, ये वो वाला 0 नहीं है, मतलब ये लॉग लेते हैं ना, तो मैम वो लॉग में इंटेंसिटी का 1 आ जाता है,
तो मतलब कुछ इंटेंसिटी तो होती है, जीरो इंटेंसिटी नहीं होती। योर आंसर? हमने लॉग निकाल दिया बच्चे, जो हम जब जीरो बोल रहे होते हैं वो लॉग में ही है, ठीक है, वो लॉग का ही डेसिबल है। तो कोई और आंसर? इन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है बच्चे, सॉरी यू वर नॉट ऑडिबल। क्या स्टैंडर्ड क्या ले रहे हैं? यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन, बट व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड? व्हाट कंप्लीट है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल, यू आर वेरी मच राइट। तो बेसिकली ये एक रेफरेंस इंटेंसिटी है, ठीक है। ओके, एंड नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेफरेंस इंटेंसिटी? So if you want to understand in a layman language, it is like when lakhs and lakhs of people were evaluated, ठीक है, generally, ठीक है, और हमने कोशिश करी to find the minimal sound that a normal hearing person can hear, okay, हमने उस साउंड को क्वांटिफाई किया, ठीक है। और इस तरीके से मतलब हमने एक बहुत ही मतलब जैसे एक मेजर पॉपुलेशन होता है उस पर जब हमने ट्राई किया, एंड देन वी फाउंड दैट देयर वाज दिस वन रेंज दैट मैक्सिमम पीपल स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम, ठीक है। तो उस उस इंटेंसिटी को हमने जब लॉग में और इसमें कन्वर्ट करके हमने उसको एक रेफरेंस लाइन बना दिया कि मतलब मैक्सिमम नॉर्मल हियरिंग पीपल विल स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम दिस लेवल ओनली, ठीक है। सो योर जो 0 डेसिबल है, इट इज जस्ट अ रेफरेंस लाइन, ओके, दैट डज नॉट करस्पॉन्ड टू जीरो साउंड, ओके। It's the standardized version of the maximum people hearing at some intensity where their hearing threshold starts from, okay। तो ये एक जनरलाइज्ड बनाया गया क्योंकि साउंड तो सब अलग अलग सुनेंगे, आपकी सुनाई और मेरी सुनाई अलग होगी, बट इवन यू कैन हैव अ नॉर्मल हियरिंग, इवन आई कैन हैव अ नॉर्मल हियरिंग। सो दैट एंटायर प्रोसेस वाज डन, एंड फिर एक 0 डेसिबल को कैलिबर किया गया, ठीक है। तो जब हमने ये बनाया, दिस ऑडियोग्राम वाज कैलिब्रेटेड, सो इट वाज पुट इट अप इन दिस वे, ठीक है, कि हम जो हमारा जो थ्रेशोल्ड है हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे विद 0 डेसिबल, ओके। तो यहाँ पे व्हेनेवर वी आर टेलिंग कि हम 0 डेसिबल का उनको साउंड दे रहे हैं, मतलब कि उसमें एक साउंड तो आ ही रहा है, और उसमें हम जो अप करते जा रहे हैं हम उस वॉल्यूम को 5 डेसिबल से अप करते जा रहे हैं, एंड देन वी आर इवेलुएटिंग कि हाउ मच डिफरेंस दिस पर्सन हैज दैन द नॉर्मल पर्सन। तो सपोज अगर मान लो यहाँ पे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, out of you if I would have tested all of you guys. So for example, if Anish was a normal person and he could hear normally, तो उसका जब मैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री करूँगी तो I will get the first time I give him some sound which is as per calibration 0 decibels, तो जब उसको करेंगे तो he will just give a response at there itself, तो उसके जब ग्राफ बनेगा तो वो 0 डेसिबल के लेवल पर ही हर हर्ट्ज पे आ जाएगा, ठीक है। यू गेट इट? क्योंकि हर हर्ट्ज का 0 डेसिबल भी डिफरेंट होएगा, आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। बट कंसिडरिंग अभिषेक अहलावत बैठे हैं, ठीक है, एंड देन उनको कुछ हियरिंग डेसिबल लॉस है, उनका कुछ 30 डेसिबल लॉस है उनको, तो जब हम उनको टेस्ट करेंगे तो he wouldn't respond at 0 decibel intensity when we are giving when we will give 5, 10, 20, 25. The moment I give him 30 decibel wala sound, he will hear it. So basically he has a hearing loss of 30 decibel than the normal person. समझ रहे हो इस बात को? जहाँ पे नॉर्मल बंदा उस एक पर्टिकुलर साउंड को उसी टाइम पे सुन सकता था, सेम साउंड को सुनने के लिए हमें उस साउंड को अप करना पड़ता है उस बंदे के लिए, दूसरे बंदे के लिए, ठीक है। तो दैट इज 30 डेसिबल। जब इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये 30 डेसिबल बिकम्स
वेरी डिफरेंट। ओके, ये इसका अलग ही एक कैलकुलेशन आ जाता है फिर। So this is just to understand कि what does the calibration over here actually means. Okay? अब जब हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, अच्छा एक और चीज़ याद रखना है जो है यहाँ पर कि हमने 0 डेसिबल की बात कर ली। अब एक बात बताओ, नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, राइट? अभी बताया था ना किसी ने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन इस प्योर टोन ऑडियोग्राम में भी इनके अपने अपने इंडिविजुअल 0 डेसिबल को हमने कैलिब्रेट किया है, और हमने यहाँ पे कोई भी एयरबोन गैप नहीं रखा है इस ग्राफ में। यू गेट इट? मतलब individually when I'm going to test the air conduction, and if Anish, as we said, has a normal hearing, so air conduction में भी उसका सारे जो ग्राफ मार्क होंगे वो 0 डेसिबल के ऑपोजिट ही होंगे, और जब हम बोन कंडक्शन को भी उससे इवेलुएट करेंगे तो उसका बोन कंडक्शन भी हर जगह 0 डेसिबल पे ही कैलिब्रेट होगा। इट विल बी नेवर लाइक कि वो 5 डेसिबल पे कैलिब्रेट होगा, बिकॉज वी कंसिडर 5 to 10 डेसिबल का डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड द बोन गैप, राइट, जनरली। ठीक है, बट यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट। यहाँ पे इंडिविजुअली एयर बोन कंडक्शन को भी ऐसे हमने एयर कंडक्शन को हमने ऐसे कैलिब्रेट किया कि वो 0 डेसिबल पे फॉल करे, और बोन कंडक्शन की भी फाइंडिंग्स को हमने ऐसे कैलिब्रेट किया है कि वो 0 डेसिबल पे ही फॉल करे। दोनों के इंडिविजुअल फाइंडिंग्स को लेकर के ये ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ से ज़्यादा वो मशीन बनाई गई है कि जो 0 डेसिबल बोन कंडक्शन का है फॉर नॉर्मल हियरिंग पीपल, वही इंटेंसिटी को वहाँ फीड किया गया है, और जो 0 डेसिबल करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटीज हैं, जो 0 डेसिबल फॉर एयर कंडक्शन होती है, वो इंटेंसिटीज वहाँ पे फीड करी गई है। यू गेट इट? Yes, ma'am. बस एक ही Ma'am, जना this आंसर means कर that दिया। हम दिस मीन्स हाँ, दैट बोन एंड एयर कंडक्शन की जो हम फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं उनकी अपनी 0 डेसिबल वाली जो रीडिंग्स है उनमें कुछ डिफरेंस होगा। फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रहे बच्चे, हमने फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर दिया है। हमने क्या बोला? इट्स अ प्योर टोन ऑडियो बैटरी, फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अगर हम 500 हर्ट्ज पे साउंड दे रहे हैं तो 500 तो फिक्स है। अब 500 में हम बस उसकी वॉल्यूम चेंज करते जा रहे हैं। जैसे हमने रेडियो की बात करी थी कि अगर तुम रेडियो सिटी सुन रहे हो तो रेडियो सिटी सुन रहे हो, ठीक है, या फिर मतलब Yes, ऑल ma'am. दोज, हाँ वो तुम सुन रहे हो। उसमें अगर तुम्हारे अगर अगेन लाइक इफ यू आर अ नॉर्मल हियरिंग पर्सन, तो तुम्हारे पास अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखो, मतलब मैं अब एफएम की बात कर रही हूँ, तो इफ यू कैन हियर समथिंग ऑन 10 वॉल्यूम एंड इफ आई हैव गॉट अ हियरिंग लॉस, आई वुड प्रेफर टेकिंग दैट टू 15, राइट? होता है ना कई बार, व्हेन यू ड्राइव इन अ कार देयर आर पीपल हु जस्ट वांट टू हियर एट 10, देन समबडी इज लाइक यार कम सुनाई दे रहा, थोड़ा ज़्यादा कर दो, तुम उसको 15 पे ले जाते हो। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ इंडिविजुअल चॉइस कि कौन कितना कंफर्टेबल है उस हियरिंग से। ठीक है, लेकिन द सॉन्ग रिमेन्स द सेम, द चैनल रिमेन्स द सेम। ठीक है, so what you're saying is we are going to keep the frequency same, but intensities जो हैं, जो वो बॉक्स जैसा हमने देखा था ना, उसमें कुछ इंटेंसिटी फिक्स की जाती है। कभी किसी ने भी पीटीए कराया है अपने लाइफ में? किसी का भी हुआ है तुम में से? बताइए। आज Yes, ma'am. व्हाट इज मेरा हेलो? हेलो हाँ जी, किसी का हुआ है यहाँ पे पीटीए? मैम, मेरा हुआ है 2 नंबर से। हुआ है ना? हाँ, तो क्या होता है उसमें, कौन सी कैसी आवाज आती है कान में? मैम, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की आवाज सुनाई को मैं उसमें तो स्पीकर तुम्हें में क्या आती है सुनाई और देता है? फॉरगेट यू आर अ डॉक्टर, ओके, फॉरगेट यू आर अ डॉक्टर। एक लेमैन लैंग्वेज में बताओ, तुम्हें सुनाई क्या देता है कान के अंदर? मैम मच्छर वाली साउंड जो होती है। हाँ, होती है ना। पहले मच्छर वाली साउंड जैसे आती है, फिर टी हो जाती है, फिर टी हो जाती है, इसी तरीके से बस साउंड चेंज होते हैं ना। यस मैम। ठीक है ना, वही चीज चेंज होती है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज, वी जस्ट कीप चेंजिंग द वॉल्यूम एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो वो ना फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ये मान लो अगर इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा तो वो हायर वॉल्यूम पे जाएगा, फिर अगर मान लो इसने फिर से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर वो डबल और हायर वॉल्यूम पे जाएगा। ठीक है ना,
जब जैसे साउंड बढ़ते जाएगा और जहाँ पे तुम्हें सुनाई देगा तुम रिस्पॉन्ड करोगे हाँ मुझे सुनाई दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ठीक है तुम्हें मुझे इतने हायर लेवल पे ले जाना पड़ता है कि तुम ये सुन सको। तुम लोग सब कोई इस चीज़ को बहुत ही जनरलाइज तरीके से समझो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है। एक घर में अगर 4 मेंबर हैं और चारों मेंबर मान लो अलग अलग लेवल पे सुनते हैं, मान लो 3 बहुत नॉर्मली सुनते हैं और एक जना कम सुनता है, ठीक है। तो घर पे जब स्पीकर पे गाने बजेंगे या टेलीविजन जब चलता है, तो अगर स्टैंडर्डाइज सब 5 या 10 पे सुनते हैं, वो बंदा बोलेगा यार मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है। एंड जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वो बाकी 3 के लिए तो वो शोर है, बट उस बंदे के लिए ये नॉर्मल है। इस बात को आप लोग समझ रहे हो? बस इसी चीज को हम थोड़ा साइंटिफिकली करते हैं, ठीक है। वी अंडरस्टैंड कि पेशेंट कहाँ सुनता है, ठीक है, कौन से लेवल पर सुनता है, किस वॉल्यूम पे जाके वो सुनता है। यू गेट इट? Yes, ma'am. वी गो आगे, और डू यू हैव सम क्वेश्चन हियर? Do you guys have any question? मैम क्या इन इंटेंसिटी की कोई लिमिट होती है? इंटेंसिटी की लिमिट जो होती है, अब मैं लेकर के आई हूँ, देखो तुम्हारे उसमें दिख रहा है कुछ ऑडियोग्राम दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे? यस मैम। Yes, ma'am. दिख रहा है ना? तो अब इस ऑडियोग्राम में देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या है। एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी डाल दिया है, जो हमने बात किया 125 से लेके 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 डाल दिया, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने 500 चेक करना है तो हम ये फ्रीक्वेंसी देते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कौन से डेसिबल पे। और डेसिबल जो इसमें कैलिब्रेशन होता है -10 से 120 या 110, अगर जब तुम हमारे हॉस्पिटल में आओगे तो तुम 110 तक ही देखोगे, ठीक है ना। अब ये इसका भी एक रीजन है, क्यों? बिकॉज जब आप पढ़ोगे देन यू विल रीड like what is the normal when we whisper, what is the sound intensity? It is around 30 decibel. When we have a normal conversation that like you and I are doing right now or something like that, that is 60 decibel. Okay, ठीक है। सो उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री के साउंड, उसके साउंड, उसके साउंड, तो ये सारे साउंड इंटेंसिटीज कैलिब्रेटेड है ऑलरेडी, ठीक है। 120 इज दैट रेंज जहाँ पे पेन इनिशिएट हो जाता है कान में, ठीक है। एंड 140 इज जहाँ पे पेनफुल होता है, ठीक है। सो वी नो अगर हम 120 से ज़्यादा साउंड देंगे तो पेशेंट विल हैव पेन इन द ईयर। यू गेट इट? एंड ऑल्सो यस हमने मैम। कुछ बात करी थी, जो उस दिन भी आप में से किसी ने रिप्लाई किया था हमें, कुछ बहुत अमेजिंग था कि स्टेपीडियस का क्या काम होता है, वो पिरामिड पे उसका क्या काम होता है। तो किसी ने कुछ बोला था ना कि मैम अगर एक्सेस ऑफ साउंड आता है कान के अंदर तो वो क्या करता है, वो एक्सेस ऑफ साउंड को, इम्पीडेंस करता है उसमें। वो एक्सेस ऑफ साउंड को कहीं से कुछ गायब कर देता है ना। मैम बस वो हेलिकोट्रेमा से फिर वो राउंड विंडो से जाके बाहर निकाल देता है, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल, कैसी मेन बात करी? पाथवे में जाने पे। हाँ जी हाँ जी। तो वो एक्सेस साउंड वेव है, वो हमारे कोई भी साउंड मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे ही हम 110 120 क्रॉस करने लगते हैं तो वो दोज आर नॉन डिजायरेबल साउंड्स टू द ईयर। वो वैसे भी जो हमारा अंदर का जो मिडिल ईयर पाथवे है वो उन साउंड को डिस्कार्ड ही कर देगा, बिकॉज दोज आर गोइंग टू कॉज trauma to the ear, they are going to cause pain to the ear, ठीक है, and trauma to the middle ear mechanism. Okay, so those are all flushed out of the ear. So इसीलिए वो 110 तक या 120 तक maximum we evaluate the hearing, ठीक है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से दिखता है, हमें दिख गया यहाँ पे हियरिंग थ्रेशोल्ड लेवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है, ठीक है। और कुछ लेजेंड्स होते हैं विच यू कैन सी जो नीचे पे है, ठीक है। बेसिकली वी हैव गॉट सिम्बॉल्स फॉर राइट एंड लेफ्ट साइड फॉर मेनी सिचुएशंस। तो अगर आप देखो, अगर हम, so to remember this there is a way कि R for R, so basically right ear के लिए red color use it, simple, ठीक है। so we use red color for the right ear and then obviously blue color for the left ear, okay।
नाउ वी हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स कि एयर कंडक्शन के लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं और बोन कंडक्शन के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए दूसरा निमोनिक आप याद रख सकते हो एक सिंपल सा तरीका कि बी फॉर बी, तो बोन फॉर बी फॉर बोन, बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। So we are going to use brackets for bone conduction. Easy? ठीक है। So this is how we're going to use it. आप generally no masking वाले याद रखो, ठीक है। no masking वाले याद रखोगे तो masking वाले याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा at one given point of time, ठीक है। उसके लिए कोई mnemonic नहीं है, बाकी आपको याद रखना होगा, but yes you can surely remember because when you have to see a pure tone audiometry, आपको हमेशा एग्जामिनेशन में एक प्योर टोन ऑडियोग्राम पकड़ाया जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप इतना भी बता रहे हो कि राइट ईयर कौन सा है, लेफ्ट ईयर कौन सा है, ठीक है, और उसमें भी कौन सा एयर कंडक्शन का है, कौन सा बोन कंडक्शन का है, आई थिंक यू हैव वन एम वेरी मच, ओके। आपको ज़्यादा नॉन मास्किंग वाली दी नहीं जाती है, मतलब मास्किंग वाली दी नहीं जाती है, तो दैट इज ओके, ठीक है। सो दीज आर द लेजेंड्स दैट यू शुड बी नोइंग, okay. Now if we see, we can just see one of the pure tones, ठीक है, okay. तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, या फिर I'll get something for you. Okay. चलो पहले ये देख लो, ठीक है। तो हाउ डू वी रीड अ प्योर टोन? अगर आपको कभी भी एक प्योर टोन ऑडियोग्राम पकड़ा दिया जाए तो पहले आप देखिएगा, ठीक है, नेम, एज, सब कुछ देखो, बिकॉज ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट टू फाइनली डिड्यूस दी डायग्नोसिस, ओके। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एज में कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंडक्ट मतलब हियरिंग लॉसेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जेंडर में कुछ टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दोज थिंग्स। देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट दी ग्राफ्स, ओके। सो लेट्स सी दिस फर्स्ट, कंडक्टिव डिजीज, जो आपको मोस्ट कॉमनली दिया जाएगा एंड विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो वी नो 0 डेसिबल इज द नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, नॉर्मल हियरिंग पॉपुलेशन ओवर हियर। अब हम देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जैसे राइट ईयर के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको देख रहे हैं, तो तुम देखते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें को एक लीजेंड दे दिया गया है कि जो क्रॉस है वो एयर कंडक्शन के लिए और जो एस्ट्रिक मार्क है वो बोन कंडक्शन के लिए। तो आप देखते हो कि जो एयर कंडक्शन है वी कैन सी इट अराउंड 40 डेसिबल एंड 30 डेसिबल, ठीक है। एंड जो बोन कंडक्शन है इट्स अराउंड द नॉर्मल रेंज इटसेल्फ, लाइक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है, ठीक है, वो वहीं पर है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंफेरियर? मैम एंट्रेंस ये है कि जो हमारे बोन कंडक्शन है वो नॉर्मल है। बोन कंडक्शन बिल्कुल नॉर्मल होने का मतलब कि न्यूरल पाथवे इंटैक्ट है, लेकिन बिल्कुल लेकिन जो हमारा दूसरा एयर कंडक्शन है वो काफी ज्यादा इम्पेयर्ड हो रही है। उसका ठीक, मतलब एयर कंडक्शन दो ही कारणों से इम्पेयर्ड होगी, या तो कंडक्टिव या तो न्यूरल। न्यूरल को तो हमने बाहर निकाल ही दिया बोन कंडक्शन से, तो बचा एक ही पाथवे की, ये तो कंडक्टिव डेफनेस ही हुई क्योंकि कंडक्टिव पाथवे नहीं ढंग से काम कर रहा। बिल्कुल, ठीक है। सो वेरी गुड, सो दिस इज हाउ यू डू इट, ओके। सो दिस इज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यू कैन फाइंड इट। अगर हम इस तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि नॉर्मल तो हमने देख लिया, ठीक है, नॉर्मल हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि जो वो एयर कंडक्शन है वो अगर तुम देखो तो 2000 तक तो नॉर्मल नॉर्मल है, फिर हायर फ्रीक्वेंसी में नीचे आ गया है टिल अराउंड 40 डेसिबल 50 डेसिबल। और अगर फिर हम बोन कंडक्शन को भी देखें तो इट्स गोइंग साइड बाय साइड विद द एयर कंडक्शन, ठीक है, एंड इट्स आल्सो हैविंग अ डिप अराउंड 4000 टू 8000। तो इससे क्या मतलब यहाँ पर मतलब सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि इस लेफ्ट वाले डायग्राम में एयर कंडक्शन इज स्टिल बेटर देन बोन कंडक्शन। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से बेटर है, तो न्यूरल पाथवे में डिफेक्ट हो सकता है। नहीं तो मैम अगर एयर कंडक्शन ठीक ना होती, मतलब एयर कंडक्शन में लॉस कम है ना, तो कंडक्टिव पाथवे इंटैक्ट है, तो इसलिए फिर न्यूरल डिफेक्ट है। ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में जो आप बेटर बोल रहे हो बच्चे, दैट्स हार्डली 5 डेसिबल का डिफरेंस,
ठीक है, 5 डेसिबल का डिफरेंस ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करेगा. To define something as bone conduction and to define something as air conduction, मतलब impairment, ठीक है ना, मतलब कि sensory neural impairment है या cognitive impairment है. But what you can see here is कि you can see कि there is a dip in both air conduction and bone conduction in higher frequencies. You know, जैसे आप 4000 और 8000 पे हो, वो conduction जो दोनों कंडक्शन पाथवे है दोनों में ही डिप आ रहा है. ठीक है, so what does that mean? I think we could have used some other graph also over here. ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है because this is only showing 4000 and 8000 में difference. ठीक है ना, but I have just deliberately put it over here because I don't want you to have an impression कि जिसमें बिल्कुल ही नीचे आ जाता है वही sensory neural hearing loss होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन्फेरेंस क्या निकल रहा है कि कंडक्शन भी बराबर चल रहा है, एयर कंडक्शन भी बराबर चल रहा है और दोनों ही साथ में डिप हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे तुमने कंडक्टिव डिजीज में इन्फेरेंस निकाला था कि मैम बोन कंडक्शन सही है बट एयर कंडक्शन नहीं सुनाई दे रहा है, तो ये कंडक्टिव पाथवे में दिक्कत है. ठीक है, तो वैसे इस वाले में देखो, बोन कंडक्शन भी सुनाई दे रहा है, एयर कंडक्शन भी सुनाई दे रहा है, लेकिन विद अ डिप. ठीक है, तो मतलब कि अगर एयर कंडक्शन सही भी था तो व्हेन इट इज गोइंग इनटू द नर्व इट इज नॉट बीइंग परसीव्ड एंड रिसीव्ड एज गुड एज इट शुड हैव बीन. और अगर हम बोन के थ्रू भी उसको वाइब्रेट करा रहे हैं तो भी नर्व उतने अच्छे वो जो साउंड सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, वो ट्रांसम्यूट नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जो कंडक्शन पाथवे हमारा था, ठीक है, वो तो क्लियर है, जो हमारा बोन कंडक्शन पाथवे है वो भी क्लियर है, बट जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो हमारा 8th नर्व के आगे का है. मतलब जहाँ पे हमारे को जो साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाने का था, वो सिग्नल जो है वो दैट इज डिफेक्टिव. डू यू गेट इट? तभी दोनों में ही डिप आया, दोनों ही डिक्रीज कर गए, दोनों pathways got equally affected because since they were not being perceived by the 8th nerve and the cochlear nerve over there that well. मतलब जैसे घर पे एक बल्ब है तो बल्ब तक लाइट आने के लिए 2-3 फैक्टर है ना, कि तुम्हारा स्विच ऑन है कि नहीं है, तुम्हारी तार कैसी है, और है. ठीक है, तो अगर हम लोग यही कह रहे हैं ना कि मान लो अगर स्विच ऑन वाला फैक्टर, ऑन एंड ऑफ वाला फैक्टर मान लो है कि वो बोन कंडक्शन है, जो तार वाला फैक्टर है वो मान लो एयर कंडक्शन है, तो तुमने देखा कि तुमने ऑन भी कर लिया, तुमने एयर कंडक्शन भी कर दिया, लेकिन तब भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो मतलब बल्ब में खराबी है ना. समझ रहे हो? यहाँ पे तुम्हारे स्विच और Yes, तार को ma'am. चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें बल्ब चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, बट कंडक्टिव डिजीज इसी सिचुएशन में क्या होता है कि तुम्हारा जब जब तुम स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो तो बल्ब नहीं जल रहा है, तुमने जैसे ही तार चेंज किया तो बल्ब जलने लगा. मतलब तुम्हारा जो स्विच है वो तो सही है, जो खराबी थी वो तार में थी. मतलब एयर कंडक्शन में थी, एयर कंडक्शन की जैसे ही हमने ठीक किया वो ठीक हो गया, बट स्विच तो सही था क्योंकि जैसे ही तुमने दूसरा तार ले आया तो वो उसमें जल गया. ठीक है, और बल्ब आइदर वेज जल रहा था कि तुम्हारा जो बल्ब वाला एरिया है, मतलब जो तुम्हारा रेन पाथवे है, जो तुम्हारा कॉक्लियर नर्व है, वो एक्ट है. ठीक है, बट वो जल इससे ज्यादा क्योंकि तुम्हारा एयर कंडक्शन मतलब बेसिकली तुम्हारा तार है वहां तक पहुंचना, वो खराब था. यू गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, सो ये एक फैक्टर होता है टू सी द प्योर टोन ऑडियोग्राम. फैक्टर होता है इन दोनों में एक ऑब्वियस सा डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको इंडक्शन और बोन कंडक्शन में? मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ पे, क्या क्या गैप? मैम कंडक्टिव में ज्यादा लॉस आ रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे, सेंसरी न्यूरल में ज्यादा लॉस आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे. नहीं नहीं, देखो ये तो बस एग्जाम्पल है एक बच्चे, ठीक है ना, बट मैं बहुत ऑब्वियस सा चीज दिखा रही हूँ, मेरे पॉइंटर को देखो, कुछ दिखा मैम रही हूँ मैं. कंडक्टिव डेफनेस में मैम बोन कंडक्शन नॉर्मल है बट एयर कंडक्शन स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी से ही लॉस है उसका ज्यादा. अच्छा,
ठीक है, व्हाट आई एम मैम ट्राइंग टू शो कंडक्टिव में हियर गैप्स ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो इफ यू रिमेम्बर, अब भैया ना जो जो पॉइंट्स हमने बात किए थे वो ऐसे ही झक मारने के लिए बात नहीं कर रहे थे, उनके सबके सिग्निफिकेंस थे। सो वी स्पोक अबाउट कि हमने दोनों एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को 0 डेसिबल में कैलिब्रेट करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा वहाँ पे एयरबोन गैप भी जनरेट होगा। यू कैन सी दिस एयरबोन गैप बिकॉज अगेन जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि स्विच तो ठीक है, तो स्विच तो तुम कुछ भी करोगे वो बल्ब ऑन करते रहेगा अगर तुम्हारा तार सही है तो, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो तार अगर खराब है, एयर कंडक्शन है, वो तो नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है। so this will always generate a airborne gap, ठीक है। this airborne gap signifies that there is a conductive hearing loss because as we said again कि अगर प्योर SNHL होगा तो प्योर SNHL में तो बल्ब भी खराब है, तो तुम्हारा बोन कंडक्शन भी इंटैक्ट है और तुम्हारा एयर कंडक्शन भी इंटैक्ट रहेगा, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, दोनों में कोई एयरबोन गैप नहीं रहेगा, ठीक है। डू यू गेट दैट? ओके। यस इन मैम। प्योर SNHL की बात हो रही है और प्योर CDHL की बात हो रही है, बट देन तुम मुझसे पूछो कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे भी गैप होता है ना। मान लो यहाँ पे जो हमने एयर कंडक्शन 20 डेसिबल के अराउंड से स्टार्ट किया, मान लो ये सेम ग्राफ ऐसे ही फॉलिंग हो जो 40 डेसिबल से हो और ऐसे ऐसे नीचे जा रहा हो 4000 8000 में, तो तुम बोलेगे मैम यहाँ भी एयरबोन गैप तो है, फिर ये तो कंडक्टिव होना चाहिए, तो ऐसे ग्राफ को फिर हम क्या बोलेंगे? हम्म, यहाँ पे देखो, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है ये, इट विल बी अ मिक्स्ड hearing loss, मतलब कि जहाँ पे एयरबोन गैप भी आ गया है, मतलब बोन कंडक्शन इज रेंडरिंग टू बी बेटर देन एयर कंडक्शन, मतलब कि एयर कंडक्शन पाथवे तो खराब है ही है, तो हमारा कंडक्टिव डिजीज तो डेफिनेटली है ही है, प्लस वो वो दोनों ही इतना डिप कर रहे हैं, मतलब बोन कंडक्शन इज ऑल्सो फॉलोइंग विद द सेम ट्रेंड एंड एयर कंडक्शन इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, मतलब कि कंडक्शन पाथवे तो खराब था ही था और हमारा आगे का जो सेंसरी न्यूरल पाथवे है वो भी खराब है, वो रिसीव तो उसको वैसे कर ही रहा है लेकिन वो उसको भी कम ही रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो वो फॉलिंग डिक्लाइन वे में आएगा विद एन एयरबोन गैप, तो दैट मीन्स इट्स अ मिक्स्ड ड्यूरिंग लॉस, ओके। Don't worry, this is not for one class. The next time I have a class, I'll put on more audiograms to you. Because आज आपने पढ़ लिया है और आप जाके घर जाके थोड़ा और पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम एक एक्सरसाइज पुट इन कर देंगे जिसमें वी कैन हैव अ लॉट मेनी ऑडियोग्राम्स, यू कैन जस्ट सी इट, यू कैन जस्ट ब्रिंग आउट द इन्फेरेंस, ठीक है। जब आप 3-4 ऑडियोग्राम एक साथ ही देखोगे तो आपको हर तरह का इन्फेरेंस समझ में आएगा। बट बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द टेक होम मैसेज इज व्हेनेवर यू सी एन ऑडियोग्राम, ठीक है, फर्स्टली यू हैव टू सी कि पहले आपको देखना है कि एयरबोन गैप है कि नहीं है, अगर एयरबोन गैप नहीं है, ठीक है, और सिर्फ वो दोनों साथ ही चल रहे हैं और दोनों के डिक्लाइन साथ ही जा रही है, तो दैट इज श्योरली SNHL। इफ देयर इज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड यू नो द बोन कंडक्शन इज बेटर देन द एयर कंडक्शन, ठीक है, सो यू नो दैट्स द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ओके ओके, ठीक है। And if you see both the factors together, then it's a mixed hearing loss. This is what you have to understand. Fine? ओके मैम। I am pretty sure you must be having a lot of doubts, but वो धीरे धीरे करके ही जाएगा. You can ask me if you're not very happy with this at this point of time. Next class we can take up more audiograms regarding this. Okay? So what is the use of a pure tone audiogram? 4 यूज होते हैं, फटाफट से बता दो। इतना हमने मेहनत किया, हम इतना ग्राफ कैलिब्रेट कर रहे, सब कुछ कर रहे, क्या फायदा है?
सिग्निफिकेंस क्या है प्योर टोन ऑडियोग्राम का? इतनी मेहनत कर करके बनाए जा रहे हैं हम। तो बेसिकली द मैम प्लेस, हाँ बोलो बोलो। मैम डिफेक्ट बता रही है कि डिफेक्ट है कहाँ पे, मतलब कंडक्टिव डिफेक्ट है बिल्कुल या अपना न्यूरल डिफेक्ट है? बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली इट टेल्स अस द टाइप ऑफ द हियरिंग लॉस, ओके, एंड ऑल्सो द डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। हम यहाँ पे डिग्री पता चल रही है ना, 20 डेसिबल का हियरिंग लॉस है या 40 डेसिबल का हियरिंग लॉस है या 60 डेसिबल का हियरिंग लॉस है। यू गेट दैट? ठीक है। सेकेंडली, व्हाट इज इट? इट्स अ रिकॉर्ड फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस, ओके। आई मीन यू कैन यूज इट एनी टाइम। आपने एक बार कर दिया, वो एक रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम प्रिंट करके एक रिपोर्ट देते हैं, वैसे ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। यू कैन कीप इट विद यू, यू कैन सी आगे चल के जब भी आप सीरियल पीटे करा रहा है कोई पेशेंट, you can see the whether the patient is improving or not improving or deteriorating in that state. Thirdly, अगर किसी पेशेंट को अगर हमें हियरिंग एड प्रिस्क्राइब करना है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू हैव। ठीक है, द पेशेंट नीड्स टू हैव दिस क्वांटिफाइंग हिज हियरिंग लॉस। एंड लास्टली इज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज इट्स अ हैंडीकैप। जब हमें मतलब हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना होता है या मेडिको लीगल केसेस होता है, तो दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम योर साइड, ओके। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो कन्वेंशनली हम क्या करते थे पहले, वेबर्स टेस्ट करते थे, रिलीज टेस्ट करते थे, वो हम कन्वेंशनली कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द एग्जामिनर ऑल्सो, द वे द एग्जामिनेशन हैज बीन डन, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हैज बीन डन इन टू, ठीक है, द काइंड ऑफ ट्यूनिंग फोक्स दैट यू हैव यूज्ड, ठीक है, the kind of hit that you have given to that. So all of that you know adds on to a lot of room for error, a room for interpersonal changeability in the result of the test, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये तुम पेन से कहीं नोट डाउन कर देते थे, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहती थी, ठीक है। सो हेंस द आइडिया ऑफ प्योर टोन ऑडियोग्राम केम फ्रॉम, ओके, ठीक है। So the next test that we do is again on the basis of air conduction and bone conduction, जो हम ये सब चीजें अब हमने प्योर टोन ऑडियोग्राम में देखी। अब हमने अगर उस दिन बात किया था कोई चीज, टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री व्हाट इज टिम्पैनो? मैम ईयर ड्रम को क्या कहते हैं? वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनम इज मिडिल ईयर, ओके। मिडिल ईयर को हम टिम्पैनम भी बोलते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा जो भी नाम होता है वो टिम्पैनिक प्लेक्सस, जो मिडिल ईयर में प्लेक्सस होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो मिडिल ईयर का जो मेम्ब्रेन है बाहर, ठीक है। फिर तुम क्या क्या बोलते हो, बोन्स के नाम होते हैं ना ऊपर और नीचे, वोटस टिम्पनाई, समथिंग टिम्पनाई होता है, बहुत सारे नाम। मैम इस पढ़ा कि नहीं मसल का उसमें नाम जाके था ना, टेंसर टिम्पनाई। टेंसर टिम्पनाई होता है। और कुछ रूफ में कौन सा बोन आता है, कौन सा पार्ट आता है? मैम टेगमेंट टिम्पनाई। हम्म, टेगमेंट का मतलब रूफ, टिम्पनाई का रूफ, ठीक है। तो मिडिल ईयर का रूफ, ठीक है। तो टिम्पैनम मीन्स मिडिल ईयर, तो टिम्पैनोमेट्री मीन्स मिडिल ईयर की मेजरमेंट हम कर रहे हैं। नाउ व्हाट डज मिडिल ईयर हैव, उस दिन वी स्पोक अबाउट इट। मिडिल ईयर क्लेफ्ट की बात करी थी हमने, बात किया था कि द ओनली मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडिल ईयर क्लेफ्ट इज middle ear is what space? Water space, solid space, air space? एयर स्पेस। जोर से बोलो। हाँ, एयर स्पेस, राइट। तो हम एयर की वॉल्यूम देखते हैं इसमें, जो एयर वहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है कैपेसिटी, वो उस चीज़ को हम इसे से चेक करते हैं। उसकी वजह से हम टिम्पैनम, जो मिडिल ईयर की जो वर्किबिलिटी है, वो हम इवेलुएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? So when we do an tympanometry, again, this is the kind of machine that we have. It again has calibrated, यहाँ पे अब हमारे पास calibrated क्या क्या होगा, यहाँ पे अब हमारे पास pressure होगा, because the whole idea of tympanometry is recording the compliance. Now what is compliance? अरे नीट वाले बच्चे हो, पढ़ा है ना compliance क्या होता है? लंग की कोई compliance होती थी, पढ़ के आए हो ना? यस मैम लंग की कंप्लायंस तो पड़ी थी। क्या होता है compliance का मतलब, क्या होता है?
Change in volume due to pressure changes. चेंज इन डेल्टा वॉल्यूम वी मतलब बाय कितना मूवेबिलिटी है उसका, यही होता है ना एक तरीके से लेमैन यस मैम भाषा में अगर बात करें तो हम, ठीक है ना, हाउ मच इट कैन मूव, हाउ मच इट कैन, तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंप्लायंस की बात करें तो हाउ मच इट कैन वाइब्रेट, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि हाउ लेस रेजिस्टेंस इट इज टू एनी चेंजेस, एनी प्रेशर चेंजेस या फिर एनी साउंड दैट वी गिव, राइट। तो द होल आइडिया हियर टू डू अ टिम्पैनोमेट्री इज कि जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ना, तो दो प्रेशर हो गए, अब हमने बोला मिडिल एयर में एयर होता है, ठीक है, तो मतलब मिडिल एयर का भी कोई प्रेशर होगा विच विल गेट इम्पार्टेड ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ से, ठीक है, और ईएसी के थ्रू हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, जो स्टैंडर्डाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम सब जी रहे हैं, उस पे जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट वाइब्रेट द मैक्सिमम, ओके, vibrate the maximum मतलब it transmits the sound at its maximum level, ठीक है। अब why do we speak about it, because as we has already discussed that day कि since there is a transmission of sound from one point to the other and obviously air से जा रहा था फिर वो एक membrane को hit करता है, जो वो एक membrane को hit करेगा सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को, तो वो वाइब्रेट करेगा जिससे वो कुछ साउंड को तो अंदर ट्रांसमिट करेगा बट कुछ साउंड को वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा, ठीक है। सो टू हैव द मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल हियरिंग वी वांट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट मोर, टू ट्रांसमिट दो साउंड एनर्जीज मोर एंड रिफ्लेक्ट as less of the sound that it can reflect back. Fair enough? समझ गए इस बात को? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये जो टेस्ट है हम इससे कंप्लायंस चेक करते हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का और मिडिल ईयर की स्टेटस का कि कितना कंप्लायंस है, कि जिसकी वजह से तो हम डिफाइन करते हैं कि मिडिल ईयर में कोई पैथोलॉजी है या नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बेस्ट कंप्लायंस होगी तो मतलब कि मिडिल ईयर में कोई पैथोलॉजी नहीं है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, there is nothing inside the middle ear which is hindering in the vibration of the tympanic membrane or which is giving a hindrance on the transmission of the vibrated sound from the tympanic membrane to the inner ear, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो मतलब कि हमारा मिडिल ईयर बेस्ट कंडीशन में है, हमारा साउंड बेस्ट तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो हम इसके बाद हम कह सकते हैं कि मिडिल ईयर जो है देयर इज नो पैथोलॉजी इनसाइड, बट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस टेस्ट एंड वी आर गोइंग टू फाइंड कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंप्लायंस पे कुछ दिक्कत है, वो वाइब ठीक से नहीं कर रहा है, वो ट्रांसमिट ठीक से नहीं कर रहा है, तो वी श्योरली नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या तो मिडिल ईयर के जो हमारा जो सेटअप है उसके अंदर, ठीक है, या तो मिडिल ईयर में फर्स्ट से कुछ है या तो उसके ऑर्बिकल्स में कुछ दिक्कत है जिसके वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी मैक्सिमम कंप्लायंस वो जनरेट नहीं कर पा रहा है। बात को समझे आप लोग? यस मैम Okay, cool enough. So we just get through this. So this is the kind of a machine that you have. इसमें भी हम वही करते हैं, तो हमारे पास तीन चीजें हमें जरूरत होती है. So if you can see, so just see this. Do you see this knob? ठीक है, this is put in the ear. Okay. Now what does that knob does? तो ये देखो, ये हमने EAC में डाल दिया. So it has got 3 channels. One channel is which produces a sound. ठीक है, जो हमने कहा है, क्योंकि हम एक साउंड देंगे तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा और जिसकी वजह से हम कंप्लायंस चेक करेंगे, ठीक है। फिर हमारे एक माइक्रोफोन रिकॉर्डर है, जो ये जो हमारी जो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा और जो रिफ्लेक्टिविटी आएगी और जो सब कुछ होगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा माइक्रोफोन। एंड द थर्ड चैनल इज दिस, it is connected to a air pump. What does it does is increases or decreases the pressure over here. तो हम नेगेटिव प्रेशर या पॉजिटिव प्रेशर हम यहाँ से दे सकते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर चेंजेस ला सकते हैं। समझ गए इस बात को? ये 3 चैनल्स होंगे, ठीक है। यू नीड टू नो इट्स अ 220 हर्ट्ज टोन जनरेटर, टू बी वेरी स्पेसिफिक इज 226, बट ठीक है, नॉर्मली जो आपके बुक में मेंशन्ड है, ढूंढा में मेंशन्ड है, इट सेज कि इट्स 220 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको ये बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है, सब कुछ बता दिया। तो हमने ये बात भी कर ली कि वी आर गोइंग टू चेक 2 थिंग्स, फर्स्ट इज द कंप्लायंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द अदर इज द मिडिल ईयर प्रेशर। अब मिडिल ईयर प्रेशर कैसे डिफाइन होता था, हम लोगों ने बात करी थी ना उसे,
The major contributor factor to middle ear pressure is the eustachian tube. Did we talk about it? Yes, ma'am. ठीक है. So let's first take compliance. तो compliance हमने बात कर लिया है. Compliance की movability of tympanic membrane will change, जो अभी मैंने आपको just बताया कि या तो जब ऑसिकुलर डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी तो जो भी वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो रहा है वो आगे जा करके वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. ठीक है. और चूंकि देयर विल बी नो कंटिन्यूटी, तो जो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बड़ा लैक्स हो जाता है. ठीक है. तो इट कैन जस्ट मूव अराउंड. और अगर फिक्सेशन ऑफ द ऑसिकल्स हो जाएगा तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी फिक्स कर देगा, तो वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल डिक्रीज. तो यहाँ पे कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. So these are the two factors. And if we see the middle ear pressure, तो हमने मिडिल ईयर में यही बात किया है कि जो हमारा मैक्सिमम जो चेंजेस, जो मैक्सिमम हमने बात किया था कि 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैक्सिमम आता है, लेकिन जो नॉर्मल प्रेशर होता है हमारे ईयर का ड्यू टू द यूस्टेशियन ट्यूब रेगुलेशन इज जनरली कंसिडर टू बी फ्रॉम -50 to 50. ओके. अभी हम ग्राफ में आएंगे तो आप इस बात को समझिएगा. चिल्ड्रन में थोड़ा और ज़्यादा होता है, 150 तक भी कंसिडर कर लेते हैं, बट ठीक है 50 to 50 का कंसिडरेशन लेके चलते हैं. ठीक है. तो अगर इस प्रेशर में कोई भी चेंज आता है तो वी नो कि देयर इज अ डिसफंक्शनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब. ठीक है. सो वी आर रीडिंग दैट अगेन. ठीक है. कि अगर वी आर डूइंग अ टेस्ट जिसमें हमें पीएम का कंप्लायंस रीड मिलता है और अगर हमें मिडिल ईयर का नेगेटिव मिलता है प्रेशर, तो हमें पता है कि क्या होगा. यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज हुआ होगा क्योंकि हमने मिडिल ईयर का नेगेटिव प्रेशर बताया है. तो डेफिनेटली देयर इज अ ट्यूब ब्लॉकेज. और ट्यूब ब्लॉकेज के वजह से अब हमने बोला रिड्यूस कंप्लायंस है. तो रिड्यूस कंप्लायंस कब होगा? जब मिडिल ईयर में कुछ होगा. ठीक है. तो वहाँ पे या तो कोई कलेक्शन हो गया है या तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इरोजन कर रहा है ऑफ द ऑसिकल, जिसकी वजह से जो है हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है. बट देन देयर कुड बी अ सेकंड कंडीशन जहाँ पे रिड्यूस कंप्लायंस है लेकिन प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है. मतलब हमारा यूस्टेशियन ट्यूब तो यहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन जो कंप्लायंस है वो कम है. मतलब अभी भी जो है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिजायर्ड मोबिलिटी नहीं शो कर रहा है. तो मतलब कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऑसिकल का फिक्सेशन हो चुका है. ठीक है. तो दिस इज हाउ आवर ग्राफ्स कम एज. ठीक है. ये यहाँ पे हमने सारे ग्राफ्स को डाल दिया है. सो यू नीड टू नो व्हाट ऑल ग्राफ्स वी गेट टू सी. सो देयर इज फर्स्टली टाइप ए. टाइप ए इज द नॉर्मल टिम्पैनोग्राम. Okay, we will see it one by one also. So this is type A. Normal tympanogram मतलब maximum compliance of the PM is at 0. ठीक है. 0 pressure which is the atmospheric pressure. ठीक है. और ऑन बोथ द साइड, मतलब जब हम पॉजिटिव प्रेशर भी देते हैं और नेगेटिव प्रेशर भी देते हैं तो वो 200 to 200 के बीच का ही है. ठीक है. सो दिस इज टाइप ए विच इज अ नॉर्मल टिम्पैनोग्राम. ठीक है. अगर आप यहाँ पे कंप्लायंस इन ml भी देखो, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे 1 ml तक आ गया है. तो जनरली इट इज सेट कि 1 to 1.5 ml का जो मिडिल ईयर स्पेस होता है वो ml में इतना ही होता है. यहाँ पे कंप्लायंस भी सही चल रही है. ठीक है. देन देर आर टू वेरिएशन टू टाइप ए विच इज AS एंड विच इज AD. तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? AS, S is for subtraction. तो मतलब जहाँ पे ये ग्राफ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है, दैट इज AS. और AD मतलब ऐड. तो जहाँ पे ये ग्राफ में एडिशन हो गया मतलब इट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल टिम्पैनोग्राम. ओके. दिस हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट. तो AS अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हमें बोल रहे हैं कि द कंप्लायंस हैज रिड्यूस्ड. नाउ वी हैव स्पोकन ऑफ द पार्ट कि कंप्लायंस रिड्यूस हो गया है, प्रेशर अभी भी उतना ही है. ठीक है ना. वी कैन सी दैट. ओके. जो हमारा प्रेशर रेंज है वही है, बस जो है कि हमारा 0 पे ही मैक्सिमम कंप्लायंस है, लेकिन जो है हमारे मिडिल ईयर प्रेशर कम हो गया है, वहाँ पे कंप्लायंस की डिक्रीमेंट हो गया है, पीक की डिक्रीमेंट हो गई है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज सम ऑसिकुलर फिक्सिटी. ठीक है. सारे ऑसिकल फिक्स हो गए हैं तो उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी फिक्स कर दिया है, इसीलिए हम कितना भी साउंड दे रहे हैं जो हमारी मोबिलिटी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वो डिक्रीज होती है. ठीक है. वो मूव तो कर रही है, वो 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही वो कर रहा है, लेकिन वो कम कर रहा है.
बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, मैक्सिमम मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम सिचुएशन जहाँ पे जो रेंज ऑफ मोबिलिटी है ऑफ द प्रेशर इज सेम, ठीक है ना, जीरो पे वो जीरो पे कंप्लायंस शो तो कर रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, मतलब इट्स हाइपर मोबाइल, it is vibrating at speed which is even more than a normal tympanogram. That means कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो लैक्स हो गई है। लैक्स क्यों हो जाएगी? या तो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज फ्री मूविंग, तो वो बहुत हायर मूव करेगा। या फिर जो है वो थिंड आउट होगी। थिंड आउट कब होती है? जनरली जो हमारे परफोरेशन, जब हील परफोरेशन होता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से मोनोमेरिक टीएम बन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही थिंड आउट हो जाती है। जो थिंड आउट है तो वो और ज़्यादा मूव करेगी। दिस इज इट। Then there are two other variations, type B and type C. So type C, if you see, यहाँ पे क्या है ना, you can see there is no peak achieved for the compliance. मतलब वो तुम कोई भी प्रेशर उसको दे रहे हो माइनस या प्लस, वो उतना ही है, ठीक है ना, कोई पीक नहीं आएगी, कोई ऐसे मोबिलिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मिडिल ईयर में फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब फ्लूइड भरा हुआ है तो तुम कितना भी प्रेशर पॉजिटिव कर दो, कितना भी प्रेशर नेगेटिव कर दो, द मूवमेंट इज गोइंग टू बी द सेम in the tympanic membrane because it is getting inhibited by the fluid which is present inside the middle ear, ठीक है। There is no change of the pressure over the tympanic membrane because of that fluid which is present inside, and hence the mobility remains almost the same in all sort of negative and the positive pressure. And the last is type C. ये कैसे याद रखना है? C is for eustachian, ठीक है, eustachian में C होता है, वैसे याद कर लेना, C is for eustachian का C, ठीक है। तो ये eustachian ट्यूब डिसफंक्शन को सिग्निफाई करता है। हाउ? इसमें क्या होगा, इस ग्राफ को अगर तुम क्लियरली देखो तो हमारा जो कंप्लायंस, मैक्सिमम कंप्लायंस है वो कुछ 200 के पास, वो कुछ अराउंड 100 के पास आ रहा है। तो बेसिकली जब क्या होता है, जब हमारा gestation ट्यूब डिसफंक्शन होता है तो हमारा टीएम जो होता है वो रिट्रैक्टेड हो जाता है मिडिल ईयर की तरफ, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जब हमने उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उसको उसकी मोबिलिटी चेक करते हैं तो वो बहुत कम होती है। जैसे हम अपने तरफ से नेगेटिव प्रेशर देना शुरू करते हैं, ठीक है, और अराउंड 100 आ जाता है, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट द नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द eustachian dysfunction inside the middle ear, ठीक है, it gets balanced, ठीक है, and there is the highest mobility of the tympanic membrane seen at that level, negative pressure create करने पर, ठीक है। So this signifies that there was a eustachian tube dysfunctioning due to which there was a negative pressure inside the middle ear, जिसकी वजह से रिट्रैक्टेड था। जैसे ही हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया आर्टिफिशियली बाहर से, so the retracted TM got into its normal position and started having normal mobility. बात को समझे आप लोग? बहुत सारी चीज एक साथ में, ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है। So again, if we look at it, so this is how it is. जो हमने टाइप ए की बात करी, हमने क्या बोला कि इसमें eustachian ट्यूब भी फंक्शन सेम होगा, ठीक है, और इसमें टीएम जो भी है वो भी सेम होगा, ठीक है। जब हमने ए एस की बात करी, ए एस से हमने बात किया, सबट्रैक्शन हो गया और इससे स्टिफनेस हो गई। तो इसमें हमारे क्या है, हमारा जो eustachian ट्यूब फंक्शनिंग है वो नॉर्मल मिलेगा। जो एक्स एक्सिस पर हम मिडिल ईयर प्रेशर दिखा रहे थे वो हमें नॉर्मल मिल रहा है, ठीक है, वो 1.5 तक टच कर रहा है। बट वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज मिल रही है। तो इसका मतलब है कि दिस विल बी सीन इन सम ऑर्टिकुलर फिक्सेशन विच इज जनरली सीन इन केसेस लाइक ऑटोस्क्लेरोसिस, या फिर if there is a tumor mass inside the ear which is again inhibiting the movement of the tympanic membrane. Okay, so AD is again, as we said, AD is add का मतलब कि ग्राफ जो है वो बड़ा हो जाएगा, और D से याद रखना डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे भी जो हमारे ये स्टेशन ट्यूब फंक्शनिंग नॉर्मल था और हमारी टीएम की मोबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई थी, और ये कब होगा? जब ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी होगा या फिर लैक्स टीएम होगा, ठीक है। C हमने बोला eustachian से C याद रखना है, ठीक है, उसका क्लोजर हो गया है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया है। बट यहाँ पे जो हमारी कंप्लायंस है वो नॉर्मल है, लेकिन एट अ नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जब हम उसको रिट्रैक्टेड टीएम को नॉर्मल कर देते हैं,
और बी की हमने बात करी कि मिडिल ईयर ब्लॉक्ड है, मतलब मिडिल ईयर में जो है कुछ सीरस फ्लूइड भरा पड़ा है या एडेसिव ओटाइटिस मीडिया हो गया है, जिसके वजह से जो है हम प्रेशर चेंज करें या कम करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज अ डोम शेप कर्व all throughout at all the pressures. Okay. मैम So I can मैम say सी good के morning अंदर class. I think if you all have slept. हाँ मैम पूछो क्या पूछ रहे थे बच्चे. मैम सी के अंदर वो कंप्लायंस 1 ml क्यों नहीं आ रहा? मतलब अगर वो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो उसके बाद आना चाहिए, मतलब लेफ्ट. नहीं आ पाएगा ना बच्चे. देखो कंप्लायंस नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने अभी जो जो क्रिएट किया है वो आर्टिफिशियली उसको रिट्रैक्ट करके किया है, लेकिन यूस्टेशन ट्यूब अभी भी ब्लॉक्ड है. समझ रहे हो इस बात को. ओके, समझ गया. तो मैम आपके एरेशन ऑफ कहने का मिडिल ईयर मतलब कभी है नहीं जो हो रहा है. मैम हाँ आपके कहने पूछो. का मतलब है जो इन्फेक्शन के कारण फ्लूइड बना, उस फ्लूइड ने पहले तो कंप्लायंस कम करी, दूसरी बात वो फ्लूइड जाके यूस्टेशन ट्यूब में डिपॉजिट हो गया, उसने फिर यूस्टेशन ट्यूब भी ब्लॉक कर दी. सॉरी फिर से बोलो बच्चे. मैम मतलब जो इन्फेक्शन के कारण फ्लूइड बना, उस फ्लूइड ने पहले तो कंप्लायंस कम करी, दूसरी बात उसने जाके यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक किया, तो उसने वो प्रेशर भी नेगेटिव वाली साइड कर दिया. जी आप किसके लिए बोल रहे हो, ये बी कर्व के लिए बोल सी रहे हो. के लिए मतलब सी के लिए. मैम हाँ देखो बात ये है, मैं तुम्हें अब एक बात बताती हूँ. जो सी वाला जो कर्व है, जो वॉल्यूम की बात हम करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि वो 1 को अचीव नहीं करेगा. दिस इज वन ग्राफ जहाँ पे आपको 1 नहीं दिखता है, लेकिन जनरली देखो तो ये नॉर्मल ईयर वॉल्यूम को रीच कर भी देता है. बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज पर्टेनिंग देयर एट द यूस्टेशन ट्यूब. अगर ये कोई अक्यूट प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अभी जस्ट कुछ अक्यूटली यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शनिंग हुई है, मे बी उनको कोई राइनोसाइनोसाइटिस हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारा म्यूकोजल डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकोजल प्लग हो गया जिसकी वजह से एरेशन नहीं कंटिन्यू हो पा रही है, ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है वहाँ पर, ठीक है. और जैसे ही हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया या फिर पेशेंट से वैल्साल्वा करवाया, आइदर वेज, ठीक है, और वो म्यूकस प्लग चेंज वो हट गया वहाँ से, ठीक है, तो ये जो कंप्लायंस है ये 1 ml तक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने यूस्टेशन ट्यूब ओपन कर दिया. ओके. लेकिन मान लो अगर ये क्रॉनिक चेंजेस हैं, बहुत सारी वहाँ पे हाइपरट्रोफी होने लगी है, धीरे धीरे करके चेंजेस हो रहे हैं, एंड वो पैथोलॉजिकल चेंजेस इज नाउ इरिवर्सिबल, ठीक है. तो जब हम आर्टिफिशियली बाहर से हम अगर उसको नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उस टाइम के लिए पार्टली रिट्रैक्ट बैक हो जाती है और फिर वो फंक्शनिंग दिखा देती है, लेकिन स्टिल वो वापस से इट विल गेट रिट्रैक्टेड बिकॉज यूस्टेशन ट्यूब जो है वहाँ से ब्लॉक्ड है, ठीक है. तो इसीलिए वहाँ पे इन दोज केसेस दिस दिस जो हम कह रहे हैं कंप्लायंस जो है वो मैक्सिमम पे नहीं पहुंच सकता है इन दोज केसेस, ठीक है. So it will depend on what kind of pathological changes has occurred at the eustachian tube block, at the opening level. Okay. मैम यूस्टेशन ट्यूब कंप्लायंस कैसे डिसाइड कर रही है? मतलब यूस्टेशन ट्यूब तो प्रेशर को डिसाइड कर रही है ना. प्रेशर डिसाइड करेगी, बिल्कुल प्रेशर डिसाइड करेगी. अच्छा तो तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे जो इन्होंने कंप्लायंस और एमएल डाल दिया है वो तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है. मैम आपने कहा ना अभी कि यूस्टेशन ट्यूब खुल जाती है तो वो कंप्लायंस को 1 पे ले जाएगी. वो कंप्लायंस तो 1 पे इसीलिए ले जाएगी बच्चे. कंप्लायंस मतलब वो नहीं ले जाएगी, बेसिकली जो मिडिल ईयर प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाएगा फिर. वो अगर if we are considering कि 1 to 1.5 is our desirous pressure of the middle ear space, ठीक है, तो अगर यूस्टेशन ट्यूब ओपन हो जाती है और वेंटिलेशन नॉर्मल हो जाता है तो हमारा मिडिल ईयर स्पेस जो है उसका जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा. यू आर गेटिंग इट. मैम मतलब प्रेशर मेंटेन होगा ना, कंप्लायंस तो प्रेशर मैम मेंटेन फिर. होगा, और अगर प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, अगर मिडिल ईयर स्पेस में जितना हमारे को प्रेशर चाहिए, ठीक है ना, वो प्रेशर वो क्लियर हो गया, मतलब वो हमें को मतलब एक फेजिक चेंज नहीं दे करके एक परमानेंट चेंज अगर आ जाता है उस प्रेशर का, तो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट विल गेट अ बेटर एनवायरनमेंट टू वाइब्रेट. समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि अब वो समझ गया. रिट्रैक्टेड नहीं रहेगी. जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अभी तक रिट्रैक्टेड थी वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी अपनी ऑटोमेटिकली, इवन व्हेन वी आर नॉट गिविंग अ नेगेटिव प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है. जैसे कभी वैल्साल्वा किया है, कभी कभी कान में भारीपन लगता है ना,
जब आपको सर्दी खांसी हो जाती है, नेजल कंजेशन होता है, एंड यू एंड अप डूइंग वैल्साल्वा, ठीक है? तो वैल्साल्वा में भी हम क्या करते हैं, हम क्लोज ग्लॉटिस के अगेन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं ओवर द नेसोफैरिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अगर मान लो यूस्टेशन ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है, कोई म्यूकस प्लग है या फिर वहाँ पे कुछ म्यूकोजा वगैरह या कोई सिक्रीशन वगैरह इकट्ठा था, ठीक है, दैट गेट्स रिमूव, ठीक है, वो जैसे ही रिमूव होता है वो एयर प्रेशर वैसे ही वो बेटर कर देता है, और वैसे ही तुमने कान में भी आवाज़ सुनाई देती है ना, टुक सी, प्रेशर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जब जैसी मूवमेंट होती है, आवाज़ कभी सुनी है? अभी भी करोगे नॉर्मली भी तो आवाज़ आएगी कान के अंदर, इफ यू आर गोइंग टू डू अ वैल्साल्वा, ठीक है? वो जो पुट सी आवाज़ आती है, दैट इज मीन्स कि जो थोड़ा बहुत रिट्रैक्टेड था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट जस्ट रीगेन्ड इट्स पोजीशन। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, so basically this is entirely like a pure tone audiometry and tympanometry that you should be knowing. ये सारे inferences आपको पता होने चाहिए, आपके लेवल पे आपको थोड़ा जो पता हो वो pure tone audiometry ज़्यादा important है, impedance audiometry definitely it is not much asked to you in the examination setup and everything, but yes you should be understanding these things because these things help you in understanding the various other pathology, ठीक है? जब आप otosclerosis पढ़ोगे, जब आप आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, सर्जरीज पढ़ोगे तो आपको ये सारे ग्राफ्स का मतलब तब और बेटर समझ में आएगा, ठीक है? बट यू शुड बी नोइंग हाउ डू वी डू इट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर, हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी मेक द पेशेंट फिट इनटू दिस, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज बीइंग एक्सप्लेन टू दिस, एंड हमारे ग्राफ के कौन कौन से ग्राफ होते हैं और कौन हर ग्राफ का क्या क्या इंफरेंस होता है, ठीक है? So these are the things that you should be knowing at your level. Okay? Any doubt? Because we are done with the time also, I guess. Uh, So I think we can take it up from here. And if you guys really want to see more of the audiograms, you can let me know. तो मेरे कोई भी नेक्स्ट जो भी कोई क्लास है, 2-3 शेड्यूल्ड है, तो उसमें आई विल मेक श्योर दैट आई गेट यू मोर ऑफ द ऑडियोग्राम सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस। ओके, जिस दिन थोड़ी छोटी क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ 10-15 मिनट इसी के लिए डिवोट कर देंगे सो दैट वी कैन सी मोर ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ ऑडियोग्राम दैट कैन बी पुट अप टू यू। ओके, थैंक यू गाइस, let's sign off the class then.